Crick Bits and Pieces, and an expert panel. Hello, and welcome to the new episode of Crick Bits and Pieces with the regular panel, Rohit Bhai and Rahul Parashar. Welcome, Rohit Bhai. Welcome, Rahul Parashar. Thank you very much. Hello. Hope you guys have been doing well. Cricketing season एकदम cricket peak पे चल रहा है, मजा आ रहा है हम लोग सबको. But West Indies has crashed out of the qualifying stage in the World Cup. हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन किए अपने पिछले एपिसोड में, and which kind of gives impetus to the long standing debate about the club versus country, because a lot of its blame, right, the underperformance of West Indies has been put upon the player prioritize club cricket over the country. But then playing for country has its own complications, at least in the West Indies, where the board has been not acting in a way that players wanted to act, right? So that's another angle. But club versus country is a major debate that has been going on. और हमारे एक व्यूअर का भी कमेंट आया था हमारे पास कि क्लब वर्सेस कंट्री के बारे में भी आप बात करो कि फास्ट बॉलर लोग ब्रेक डाउन कर जा रहा है क्लब क्रिकेट खेल के, मेजर लीग्स खेल के, अपेरेंटली क्लब क्रिकेट तो क्या ही और कंट्री के लिए नहीं अवेलेबल हो पा रहा है, राइट? तो लेट अस टेक दैट एज अ टॉपिक एंड we'll see where the discussion goes. So again, opening up the floor with that context, anyone who wants to take it away. रोहित भाई. देखिए अजीत भाई, इसमें दो चीज है. एक तो ये प्रॉब्लम है, क्लब वर्सेस क्रिकेट मींस कंट्री इज अ प्रॉब्लम, नो डाउट अबाउट दैट. बट इसमें वेस्ट इंडीज का बिगर अलग ही मेजर इशू है उनका, बिकॉज हमने पिछले डिस्कशन में पहले ही बात कर रखी कि इनका बेंच स्ट्रेंथ भी अब उतना अच्छा रहा नहीं. तो इनके हार के पीछे सिर्फ आप क्लब को नहीं बोल सकते, बिकॉज आप बोलिए ना, बाहर में कौन बैठा हुआ है? रसल फॉर्म में नहीं है, नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्लब्स के लिए भी. सुनील नारायण, यस, बट देन अकील हुसैन भी कोई खराब नहीं कर रहा था, कंटिन्यूसली हैज बीन डूइंग गुड. और आपका हिटमेयर तो फ्लाइट मिस करने के कारण नहीं आया, क्लब के लिए थोड़ी बैठा हुआ है अभी. दैट इज वन एस्पेक्ट. अनदर एस्पेक्ट, डेफिनेटली आई एग्री, specifically for the countries which are or whose economy is not doing great today. This is South Africa. मतलब they have jeopardized their chances to go to the next World Cup by cancelling their one-day matches, because they are organizing a T20 tournament at that point of time, because they know कि अगर वो अपने क्रिकेटर्स के लिए कुछ नहीं करते हैं, then it becomes very tough. Correct. And the situation becomes scary when you think कि BBL is worried कि भाई next time मतलब वार्नर को लेने के लिए they were like कि नहीं, वार्नर should not go to UAE because UAE ज्यादा पैसा दे देगा, बहुत ज़्यादा. so बहुत ज्यादा पैसा देगा. तो definitely there is, मतलब I would definitely agree, and I would rather say कि if somebody is not looking into this conflict of club versus cricket, I think they are not following cricket. That's how I would like to put it. Means I have a very strong view, because see, you know, I don't follow club cricket that much. I like the cricket of countries. I would rather watch a Sri Lanka versus Bangladesh than going for club matches, because मजा आता है, बट वो इंटेंसिटी जो एक कंट्री को हरा के, जिम्बाब्वे जिस दिन ऑस्ट्रेलिया को हराई ना, दिन भर खुश रहे भाई, जिम्बाब्वे हराई, मतलब वो मजा आ जाता है. कहाँ याद है, नहीं याद है कि 10 बार IPL हो गया, कौन जीता अब नहीं याद रहता है. आप पूछिए किसी कंट्री का, बताएंगे आपको. So that's my view. I might be outdated. That's my view. Rahul Parashar? I think I have a slightly difference of opinion on this. Not on the theme, but I think we are not looking at the problem the right way. हर country के board का अपना issues है. So रोहित भाई 100% agreed on that. So जो club versus country का जो debate है in West Indies is very different from the club versus country debate in India. And what I mean by that is कि India में I do feel कि the club cricket, and when we are talking about club cricket, let's put it out there, right? We are talking about IPL. So we are talking about IPL, and I do believe that IPL is being given more priority in India as compared to international cricket. But I don't think that prioritization is being done by the cricketers. I don't believe cricketers in India are empowered enough to be making such kind of decisions. I think it's a case of BCCI making that decision on behalf of the on behalf of the cricketers. कि
हमारे लिए आईपीएल प्रायोरिटी है, because IPL is what is driving our board, is helping us fund the infrastructure that is needed to support cricket in India. So BCCI के लिए IPL is a priority, और अगर BCCI के लिए IPL priority होगा, तो there's no way it cannot be a priority for Bumrah. Cricketers have to play, not just because there's money involved in it, but also because people who perform well in the IPL are the first in contention to be picked for the T20 World Cup. Performances are remembered, right? So I think it's misdirected anger. I don't think we should be directing any kind. And this is going specifically to the comment which was put in our video. I think if Bumrah is breaking down and he's being injured because he's played way too much IPL, I don't think the blame lies with Bumrah. I think the blame lies with BCCI. Now, coming to the question around West Indies and South Africa, I think the equation there is slightly different. I think the equation there is flipped in the sense that a Pollard is bigger than the board. So, अगर Pollard को ऐसा लगता है कि Big Bash खेल के IPL खेल के उसका career and उसका financial needs are being met, he's going to go ahead and do that. And the board has zero control over it. क्योंकि board is a toothless organization, उनके पास पैसा ही नहीं है. So cricketers are making decisions on their own behalf. And just to take this argument one step further, अगर आप BCCI की, coming back to BCCI, अगर हम BCCI की बात कर रहे हैं, अगर country को prioritize करना ही important होता for the BCCI, then they wouldn't be stopping our cricketers from playing in the Big Bash League. At least एक season खेलने देते, to get them used to the Australia का T20 में conditions, so that when they're performing, playing for India in the 2022 T20, they have more experience playing in those conditions. But BCCI तो allow नहीं कर रही. There's a reason for that. क्योंकि हमारे cricketers वहां पे जाएंगे, viewership जाएगा, पैसा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के पास जाएगा, and then they'll have as much clout as the BCCI does. So I think the anger is misdirected. The debate is very pertinent and it's very timely. So a lot of good points in both of you guys, whatever you said, right? But ideally, I think what is coming out is कि हर जगह situation अलग है. It depends. Because BCCI can control their players because BCCI is BCCI, right? और BCCI के पास एक ही मेजर प्रॉपर्टी है आईपीएल, एंड बीसीसीआई कैन अफोर्ड टू नॉट अलाउ देयर प्लेयर, क्योंकि बाहर नहीं जाने से उन लोगों का कोई भारी नुकसान नहीं होगा. बीसीसीआई विल कंपनसेट देम वेल. पैसे के लिए कोई बाहर जाके खेलेगा, ये इंडियन क्रिकेटर्स को करने की जरूरत अभी नहीं. बट इफ यू सी कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वाले अपने प्लेयर्स को नहीं कंटेन कर पा रहे उस हिसाब से कि तुम सिर्फ द 100 खेलो या तुम सिर्फ बिग बैश खेलो, तुमको हम आईपीएल नहीं जाने देंगे, क्योंकि अभी जब यूएई वाला लीग चालू होगा, और अगेन इट वर्क्स आउट इन फेवर ऑफ बीसीसीआई, क्योंकि सारी फ्रेंचाइजीज आर ओन्ड बाय आईपीएल फ्रेंचाइजीज, ऑल द फ्रेंचाइजीज आर ओन्ड बाय आईपीएल फ्रेंचाइजीज, तो वहां पर बीसीसीआई का ही चलती रहेगा. तो पैसा ही मेजरली ड्राइव कर रहा है. जिन बोर्ड्स के पास पैसा नहीं है वो अपने प्लेयर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं. जिन बोर्ड्स के पास पैसा है वो अपने प्लेयर को इतना कंट्रोल कर पा रहे हैं कि वो द प्लेयर हैज टू अलाइन विद द बोर्ड्स आस्क, राइट, कि हमारे लिए आईपीएल प्रायोरिटी है, तो आईपीएल में मेरे सारे मार्की प्लेयर अवेलेबल रहेंगे. अगर इंजरी हो गई तो अलग बात है, बट ऐसा नहीं है कि इंजरी में भी किसी को खिला रहे हैं ना. आईपीएल तो ऐसा भी नहीं हो रहा है कि इंजरी में खिला रहे. दी स्ट्रेंज सिचुएशन इज विद वेस्ट इंडीज. बाकी कंट्रीज में ना, the leagues that their players are playing around the world, right, it is helping their team to get stronger. बट वेस्ट इंडीज में वो भी नहीं हो रहा है कि बेंच स्ट्रेंथ नहीं बन रहा है. जैसे इंडिया का बेंच स्ट्रेंथ आईपीएल की वजह से बहुत ह्यूज बन गया है, ऑस्ट्रेलिया का बेंच स्ट्रेंथ बिग बैश की वजह से बहुत अच्छा बन गया है, राइट. एंड नॉट जस्ट दैट, इफ यू सी मैक्सवेल एंड वार्नर, they came into limelight during an IPL, right? Warner is totally IPL product, or Warner is one of the greats in Australian cricket at this point of time, right? So these leagues have helped the country's team to get stronger and better, right? Of course, apart from all the exposure जो बोला जाता है ना, कि हमारे प्लेयर इनके प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं, ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं, we know about strength, weaknesses, कैसे सोचता है, क्या प्लान करता है, and it makes the game a better game, right? देखने में मजा आता है. फुटबॉल से क्रिकेट को कंपेयर करने के लिए अभी बहुत प्रीमेच्योर स्टेज है क्रिकेट का, क्योंकि फुटबॉल हैज गॉन टू अ डिफरेंट लेवल. द क्लब्स हैव कंप्लीटली टेकन ओवर द कंट्री गेम्स. आई डोंट सी दैट हैपनिंग इन क्रिकेट, मेजरली बिकॉज क्रिकेट हैज 3 फॉर्मेट्स और क्लब क्रिकेट सिर्फ एक ही फॉर्मेट में खेला जाएगा, राइट. फुटबॉल में ये फॉर्मेट वाला वेरिएशन नहीं है उस हिसाब से. तो देयर इज नो लीग्स दैट इज गोइंग टू प्ले अ 5-day गेम, राइट. ऐसा तो लीग बनना नहीं है. लीग विल ऑलवेज बी देयर फॉर T20 ओनली. अजित भाई, just to add, आपने कहा 3 फॉर्मेट्स है क्रिकेट में, but everybody is saying that your one days are dying.
Earlier, people were saying the test matches are dying, but now people are saying that nobody has looked. But the reality is that the one days are dying because नहीं, nobody has. हाँ, तो वन डेज आर डाइंग का आर्गुमेंट मुझे इसलिए फ्लॉट लगता है नरुल भाई, क्योंकि वन डेज आर नॉट डाइंग. द ओनली थिंग इज दैट बैक टू बैक वी हैव हैड 21 में क्रिकेट ज्यादा हुआ नहीं, 20 में क्रिकेट हुआ नहीं, 21 में वी हैड अ 2020 वर्ल्ड कप, 22 में वी आर हैविंग अ 2020 वर्ल्ड कप. तो उस वजह से अ लॉट ऑफ टीम आर प्लेइंग मोर T20. As soon as this T20 World Cup is over, you will see the flip, because then everyone is going to prepare for 23 World Cup. उसके बाद अपने आप ODI होने लग जाएंगे. बट अगर आप नेक्स्ट 4 ईयर का जो FTP बना हुआ है, फ्यूचर जो टूर्स के प्रोग्राम है, in that clearly it is showing कि भाई countries like Bangladesh and all are only going for one days. Other teams have deprioritized the one days. That's one aspect. Another aspect, see, मेरा एक point ये भी है, ठीक है, क्लब क्रिकेट आपको हेल्प करता है, पैसा जनरेट करता है, बट पैसा सिर्फ BCCI को तो नहीं चाहिए, हर किसी को चाहिए. अब उसके नाम पर एक, आई थिंक, न्यूजीलैंड को छोड़कर हर किसी ने अपने अपने टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कर दिए हैं. श्रीलंका तो कौन कौन सा कर दिया, अब 2-4 फेल भी हो गए, नए आ भी गए. इंडिया के पास IPL है, पाकिस्तान के पास PSL है, UAE के पास अपना हो गया है, बांग्लादेश के पास BPL है, साउथ अफ्रीका एक फेल अटेम्प्ट करके फिर से एक बार नया शुरू करने की कोशिश कर रहा है, वेस्ट इंडीज के पास है, आपके पास इंग्लैंड के पास है. तो हर किसी के पास तो लीग्स आ गए, 12 ही महीने, 365 डेज ही है. आप कैसे सबको मैनेज करोगे? और यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि एवरीबडी वांट्स द बेस्ट प्लेयर्स टू कम फॉर द लीग्स. अगर UAE और साउथ अफ्रीका का लीग एंड BBL सब कुछ फरवरी में ही होगा, फरवरी में तो ऑलमोस्ट ये है कि हर कंट्री, एक इंडिया को छोड़ के, कोई भी इंटरनेशनल खेलने के लायक नहीं रहेगी, क्योंकि सबके तो सारे खिलाड़ी भाई डॉलर्स में कमाना चाहते हैं. कौन रैंड में चाहेगा कि हम साउथ अफ्रीका के लिए रैंड कमाएं? आप ही सोचिए ना, 6 क्रिकेटर्स उनके टेस्ट मैचेस क्विट करके लास्ट ईयर साउथ अफ्रीका के सब लोग IPL में थे. सो मतलब मेरा पॉइंट ये है ना कि देयर इज समथिंग that the boards have to think and the players also have to come. I'm not saying कि छोड़ दीजिए club, but there has to be a, I would say, balance. कि okay, for example, if this particular XYZ cricketer is playing one, apart from that, they should be allowed to go for one more league. Let's say something like that. Am I audible? So my only point is that. And lastly, though I पता नहीं आप लोग ये सोचे या नहीं, पाकिस्तानीज आर वरीड. सारे लीग्स अगर इंडियन के ही खरीदे हुए होंगे तो पहले तो उनको IPL में नहीं दिया हमने जगह, ठीक है. अगला UAE वाले में भी किसी को नहीं खरीद रहे उनके, और सिर्फ वेस्ट इंडीज में 3 खिलाड़ी उनके खेल रहे हैं, एक आजम खान, मोइन खान का बेटा, और 2 लोग और खेले हैं, उसमें से 1-2 तो ये आपके कोलकाता नाइट राइडर्स वाले टीम के. तो पाकिस्तानीज भी वरीड है कि भाई हर जगह आप ही लोग खरीद लोगे तो हमारे क्रिकेटर्स तो बस PSL में रह जाएंगे. एंड विद द पाकिस्तानी रुपी हैड गॉन टू 232 कंपेयर टू डॉलर. अभी पिछले कुछ दिन से शायद 220 पे आए हैं. तो बहुत खराब स्थिति है उनकी. उनको चाहिए कि भाई 1-2 लीग हमको बाहर में भी खिलाओ. तो वो भी एक एस्पेक्ट है जिसको सोचना है. Correct. And I think among all boards, I see New Zealand handling it better. But New Zealand में अभी just शुरू ही हुआ है कि ट्रेंट बोल्ट सेड कि मेरे को नहीं चाहिए कॉन्ट्रैक्ट. दे सेड ओके, बट ट्रेंट बोल्ट हैज बीन प्लेइंग. उसके बाद एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है कि बोर्ड उसको नहीं लेना चाह रहा है, जैसे वेस्ट इंडीज में हुआ था कि नारायण, पोलार्ड, गेल, ये लोग की हाँ ठीक है भाई मत खेलो, निकल जाओ. दे आर नॉट डूइंग दैट टू देयर प्लेयर्स बिकॉज़ दे से कि यार ट्रेंट बोल्ट बहुत बड़ा वैल्यू एड है, जब अवेलेबल है देश के लिए तब खेलेगा, राइट. और जब उसको लगेगा कि ये क्लैश हो रहा है, देन ही कैन चूज हिज कॉल. फेयर इनफ. अर्जित भाई बहुत प्रैग्मेटिक बोर्ड है, बहुत प्रैग्मेटिक. अंडरस्टूड दिस कि भाई ये प्रॉब्लम आने वाली है, पहले ही से समझ गए कि कन्फ्रंटेशन इज नॉट द वे, कोऑपरेशन इज द वे. करेक्ट. तो आप देखिए ना, जो उनका वो ऑलराउंडर भी अभी जो उसने भी रिटायर किया ना आफ्टर ट्रेंट बोल्ट, नंबर 7, सॉरी ना, नीशम रिटायर्ड. हाँ, नीशम के पहले वो भी कॉलिन डिग्रैंडोम, उसने भी रिटायरमेंट लिया बिकॉज उसका भी सिलेक्शन ऑस्ट्रेलिया में BBL में हो गया था. सो अंडरस्टूड. देखिए टीवी भाई सबको पता है 35 पे आ गए अगर, तो भाई अब तो क्रिकेटर्स का करियर खत्म होने वाला है.
2-1 साल खेलना है, बात। कुछ पैसा बनाना है, तो उनको भी आप नहीं बोल सकते कि भाई कंट्री कंट्री कंट्री। अरे भाई कितना कंट्री, अरे एक लिमिट है भाई कंट्री सही बात। करने का। भाई कुछ पैसा कमाएगा भाई कंट्री। एक आई थिंक बीसीसीआई छोड़ के कौन पेंशन दे रही है किसी को? हाँ, कोई नहीं, करेक्ट। बाकी कोई बोर्ड्स तो नहीं दे नहीं रही है। तो बिल्कुल। हाँ, तो ठीक है, बीसीसीआई अफोर्ड कर सकती है, देती है, तो भाई अपना भी सोचना गलत थोड़ी है। तो यार यही पे जानते यही। हैं हाँ रोहित please। भाई, ये पूरा मतलब हम डिस्कशन जब सुने एंड उसके बाद पता है मेरा द फर्स्ट थॉट दैट स्ट्रक मी वाज कि यहाँ यूएस में ये लोग का नेशनल फुटबॉल लीग एनएफएल होता है, जो कि एनएफएल यूएस का जनता छोड़ के बाकी कोई नहीं देखता है। It's a tough sport, it's an interesting sport, it's a very complicated sport, but there is no viewership outside of the US, and it is one of the richest. अगर आप तुम देखिएगा कि जितना पैसा लगता है, जितना स्पॉन्सरशिप्स आता है, it is by far one of the most expensive sports in the world. लेकिन उसका जो पूरा व्यूअरशिप है, that is constrained to one geography. The risk that I see कि आज के डेट में based on everything that we are reading and we are hearing, बीसीसीआई छोड़ के किसी के पास पैसा है नहीं, और उनके पास पैसा इसलिए नहीं है क्योंकि व्यूअरशिप पूरी यहीं पे है, इंडिया में बैठी हुई है। So do you think the IPL will become the next NFL? जहां पे we are attracting talent from everywhere to play, but T20 and 50 over cricketers, and I'm thinking let's say next 5-10 years, and BCCI continues to be as aggressive as they are right now, that becomes the norm. जहां पे international cricket, at least T20 and one day level पे, is getting killed across some of these smaller countries, like the countries that we have known and been fans of for so long: Sri Lanka, West Indies, South Africa. There is no incentive for the players to play for their respective countries. All the cash is sitting here because all the viewership is sitting here. So might as well go and play there. No, I don't know what that would mean for the broader cricket ecosystem. I think it would be terrible, but that is something that could become a reality because there is precedence that we are seeing in other geographies in sports of similar scale. But the other point is, of course, how currently there are, let us say, 5-7 South Africans who are globetrotting around the world, right, for playing all the leagues. ये 6-7 लोग जब बाहर खेल रहे हैं, राइट, तो इनकी जगह कोई ना कोई तो खेल रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट। और जब तक तुम इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा नहीं करोगे, तब तक तुमको दूसरे लीग्स में तो जगह नहीं मिलेगी, राइट। हम लोग बीबीएल के स्टार परफॉर्मर को नहीं लेते हैं आईपीएल में, क्योंकि बीबीएल का स्टार परफॉर्मर लोग बहुत बहुत अलग सेट ऑफ पीपल, राइट। बेरेंडॉफ हो गया, इवन ग्लेन फिलिप्स वाज अ बिग थिंग इन वन ऑफ द आईपीएल। हम लोग कभी नहीं खरीदे उसको, हम लोग दूसरे लीग्स के हिसाब से नहीं खरीद रहे। आईपीएल में कौन प्लेयर ज्यादा महंगा बिकता है? जो रिसेंट सीरीज अगेंस्ट इंडिया में अच्छा करता है, राइट। ये हिस्टोरिकली ऐसा रहा है, जब भी डेटा उठाओगे तो ये दिखेगा तुमको कि जो इंडिया में अच्छा करता है, इंडिया के अगेंस्ट अच्छा कर रहा है, जो बाहर का प्लेयर वो लोग अच्छा कर रहा है। इफ यू लुक एट इट, अ लॉट ऑफ एसटीडीज प्लेयर डोंट पुल आउट ऑफ international cricket when they are playing against India, because that is the way into a big IPL contract. But that's not just the only angle, no, Arjun. The other side of that is when you're playing against India, there is viewership, there is sponsorship, and there is more money to be made in that particular tournament. That is true. Paycheck हमारा आएगा कि नहीं आएगा, that's never at risk. But majorly it is going to the board only, right? उसको player को additional पैसा नहीं मिल रहा है कुछ, कि इंडिया के for a player's income there is no difference when they play against India or they play against Bangladesh. उसको तो मैच फी मिलना है ना, कॉन्ट्रैक्टेड मनी के साथ मैच फी मिलना है ना, दैट इज व्हाट दे आर गेटिंग। ऐसा तो नहीं है कि इंडिया वाले ज्यादा मैच फी देते हैं बीसीसीआई के टूर्नामेंट में, ऐसा तो नहीं है, दैट इज अ फिक्स्ड अमाउंट जो मिलना है उसको। बट द परफॉर्मेंस अगेंस्ट इंडिया इज अ टिकट टू आईपीएल। आई थिंक ये वेस्ट इंडीज वाले तो बहुत डेफिनेटली बहुत अच्छे से जानते हैं, एंड साउथ अफ्रीका ऑल्सो इन माय ओपिनियन। But see, I think this is a debate because it is new to cricket. Eventually, everyone will settle and boards and players will learn. West Indies, Sri Lanka, mein, because of the cash crunch, they are going through a much harder time than in India, England, Australia. So richest 3 board तो यही 3 है ना, India, England, Australia. But कभी-कभी BBL को भी लेके ऑस्ट्रेलिया इनसिक्योर हो जाता है, राइट, सेम की सेम टाइम पे मत कराओ। ये अभी PSL IPL के शेड्यूल में क्लैश होने वाला है मेरे ख्याल से। नहीं, यही पे हम बता रहे थे, यही चीज एकदम, कि अर्जित भाई, रवि शास्त्री लास्ट ईयर बोले कि हो सकता है हम साल में 2 बार आईपीएल कराएं। आईपीएल 8 कंट्री से ऑलरेडी 10 कंट्री का हो गया, 10 क्लब का हो गया, है ना। इस सिचुएशन में मेरा पॉइंट ये है कि इतना ज्यादा आईपीएल अगर होगा, और हम लोग कराते हैं आईपीएल अप्रैल मई
जो कि बाहर के कंट्रीज के लिए पीक टाइम। अब मतलब आप ये सोचो कि आईपीएल में इंग्लैंड का टेस्ट मैचेस शुरुआत का हैम्पर होने लगता है, मतलब पहला 2 टेस्ट जो उनके समर का होता है, विंटर का नहीं, समर का, इनफैक्ट समर का, वो हैम्पर होने लगता है। तो मतलब अगर देखिए, अगर इसको ना इस क्लब वर्सेस कंट्री डिबेट में एक एस्पेक्ट ये है ना कि वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर्स ने इसको सबसे खराब कर दिया है। बाकी क्रिकेटर्स फिर भी प्रैग्मेटिक होकर ना मैनेज करते हैं, या उनके क्लब्स ने भी मैनेज किया। यहाँ इनका जो मतलब मैनेज कर रहा है ना क्रिकेट, वो भी नहीं समझ रहा है कि भाई कैसे बैलेंस करें। Correct. अगर The board has हाँ, made it board. even worse. The board has made it even worse. Absolutely. Right. That is true. That is true. Wait, sorry. Carry on. हाँ, that's what, मतलब हम, मेरे हिसाब से इसका बहुत सिंपल सॉल्यूशन है कि एक तो ये है कि भाई न्यूजीलैंड से सीखिए, और दूसरी चीज ये है कि भाई बीसीसीआई से पूछिए कि भाई आपका प्लान क्या है, बिकॉज बीसीसीआई हाँ नहीं देखिए, मानिए तो भगवान, नहीं मानिए तो कुछ नहीं, वही वाली बात है बीसीसीआई के साथ। पैसा यही जनरेट करते हैं, रमीजादा को पता है। हाँ तो भाई बात करिए ना, ठीक से बात कर लीजिए, समझ जाइए कि भाई क्या फ्यूचर प्लान है। लड़के तो हमसे आप नहीं जीत पाइएगा। और इसमें मैं ये प्राउड और बोस्ट होके नहीं कह रहा हूँ, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जिसकी लाठी उसका बोल। तो भाई अभी क्रिकेट को कंट्रोल हम करते हैं, हमारे पास पैसा है। उसके साथ चैलेंज यही है कि द वे आई फील, द वे बीसीसीआई, the direction in which they may take the sport might not be the direction that we want to go in. नहीं क्योंकि अगर साल का 2 आईपीएल अगर हो रहा है, अगर साल का 2 आईपीएल का बात, if it ever were to become a reality, then we are basically talking about 4 months of T20 extra, and there's nothing wrong with that. Like I have nothing against T20, I have nothing against IPL. I think दोनों का अपना अपना जगह है। यहाँ पे लोग हमसे जब पूछता है कि साला तुम लोग टेस्ट मैच काहे देखता है जी, इट्स लाइक वाचिंग पेंट ड्राई। वो लोग क्या समझाया जाए कि क्या चार में। So the way I put to them is they are basically 2 different experiences. Going to a T20 game is like going to a concert. Going to a test match is like going for a picnic. दिन भर का अपना तैयारी करके जाइए, किताब उताब लेके जाइए, खाना वाना लेके जाइए, इत्मीनान से मैच देखिए। And I have a feeling the way BCCI is taking the direction which the sport is going, let's just hope कि they don't kill the test matches. नहीं देखो, so that is not the intent, but yeah, 2 IPL in a calendar year, I don't know क्यों बोला शास्त्री, सुबह का टाइम रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली, जैसा सौरव गांगुली बोल रहे, that is a possibility, but 2 IPL will be very low, क्योंकि then it will be a war between boards, which is not good. Then there is a scope, then हम लोग carry packer हो जाएंगे actually, then we are not a board anymore. then that's what we are doing, disrupting the game another time. तो वो तो नहीं होगा जैसा मेरे को लगता है। 2 IPL बहुत ही स्टूपिड डिसीजन भी है, क्योंकि यार मालूम है अर्जित, एक और चीज हम बोलना चाहेंगे। आई थिंक वी टॉक्ड अबाउट दिस, जो बेंच स्ट्रेंथ बनता है आईपीएल की वजह से। आई थिंक देयर इज सम ट्रूथ टू दैट कि हमारा इंटरनेशनल क्वालिटी भी बेटर हो रहा है, लेकिन नॉट ऑलवेज। तुम 2009 का T20 वर्ल्ड कप याद करो, मार बाउंसर साला बैट्समैन लोग का याद है। हम लोग कितना 2009 में जब टीम भेजे थे, तो रायना है, यूसुफ पठान है, बड़ा खिलाड़ी लोग हैं। साला उधर से कौन था इंग्लैंड वालों, लेफ्ट आर्म सीमरवा याद, साइड बॉटम, कोई नाम नहीं सुना था उसका। लेकिन जब वो लड़का 90 के स्पीड पे बाउंसर मारना शुरू किया, तो बल्लेबाज लोग तो हड़बड़ा गया हमारा। तो T20 हैज इट्स प्लेस, लेकिन यार इंटरनेशनल क्वालिटी तो इंटरनेशनल क्वालिटी होता है ना। हाँ नहीं 9 में ऑफ कोर्स हम लोग रेनिंग चैंपियन थे उस समय, तो वो भी था कि इस समय कॉन्फिडेंस और ज्यादा था, क्योंकि 7 में तो हम लोग थोड़ी सोच रहे थे कि भाई वर्ल्ड कप जीत के आ जाएंगे। अब तो मजेदार वर्ल्ड कप था यो। 9 में हाँ, आई रिमेम्बर 9 इवेंचुअली, बट अगेन तो क्लब वर्सेस क्रिकेट, आई थिंक द बेस्ट वे इज कि सिम्बायोटिकली दोनों चीजें रह सकती हैं। ऑफ कोर्स देयर नीड्स टू बी सम क्या बोलते हैं उसको, बुद्धिजीवी, striking a balance. I think boards need to strike a balance, and BCCI needs to reel itself in. BCCI को इतना, I don't think BCCI is the villain in this whole debate. It is kind of easy to, मतलब देखो, not just easy, a lot of time it is so that the guy with the most money in the pocket is responsible for whatever wrong is happening around. But BCCI इतना ही नहीं है यार। BCCI बीच में I think there are a lot of people planning to retire and all that.
उस समय भी बीसीसीआई बोला कि आईपीएल में अगर रिटायर कर लोगे तो आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे या ये सब वो सब, ऐसा सब भी बात हो रहा था। तो these are the solutions that everyone will arrive at eventually, क्योंकि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया एटलीस्ट these three board will work together। जैसे ऐसा नहीं होगा कि कल को बेन स्टोक्स इंग्लैंड के लिए खेलना छोड़ के आईपीएल खेलने आ जाएगा, राइट? या डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलना पूरा छोड़ के आईपीएल खेलता रहेगा। आई थिंक उसमें बीसीसीआई विल से कि भाई क्लियर सी बात है, आपके पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए अपनी कंट्री का, तो हम आपको अच्छा, आईपीएल जो तुम आर्गुमेंट मेक करो, मे बी बेन स्टोक्स एंड वार्नर के केस में वैलिड नहीं होगा, बट वी कांट गारंटी दैट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। देखते हैं। आई थिंक इट विल बी देयर, क्योंकि उनका बोर्ड भी एंगेजमेंट रखता है। एटलीस्ट इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया तो डोमेस्टिक क्रिकेट में काफी इन्वेस्ट करता है। बट ठीक है, दिस इज अ डिबेट दैट इज देयर। आई थिंक बोथ ऑफ दीज आर हियर एंड विल रिमेन अराउंड, एंड हम लोग दोनों एंजॉय करेंगे ऑफ कोर्स क्रिकेट भी। वही है। See, the key word here will be balance. Balance लाना होगा। Ideal balance नहीं होगा, perfect balance कभी नहीं होगा, लेकिन balance लाना होगा between the player, between the board, and of course between these all the clubs. इस तीनों के बीच में ideal balance, तो balance नहीं आएगा ना, दिक्कत होगी, और बैलेंस आ गया तो हर कुछ को एग्जिस्ट कर सकता है। दैट्स द रियलिटी। So the and our role model here is the New Zealand Cricket Board. Yeah, that's what I heard. I would say New Zealand, I like please. No, I was just saying New Zealand is a role model for a lot of things, for a lot of countries and boards to be. But again, the coordination between the boards also is important, right? बोर्ड आपस में कैसे कर रहे हैं कि भाई अगर वेस्ट इंडीज बोर्ड, मेरे ख्याल वेस्ट इंडीज बोर्ड, एज आई सेड, राइट, वेस्ट इंडीज बोर्ड का बाकी बोर्ड से रिलेशन भी काफी खराब है। वो लोग नहीं रीच आउट कर रहा है ना बीसीसीआई को कि ब्रो थोड़ा हेल्प कर दो, मेरा प्लेयर लोग भाग रहा है, तुम कैसे मैनेज कर रहे हो? जाके पूछो, सीखो, कुछ तो करो यार। बोर्ड को कुछ नहीं पड़ा है। बोर्ड वहां पर मेरे को लगता है कि बोर्ड चाहता है सारा पैसा मेरे पास आ जाए, और प्लेयर सोचते हैं कि प्लेयर्स को ये अनफेयर लगता है कि हमारी कमाई का सारा पैसा बोर्ड ले जा रहा है, तो हम अपने से कमाएंगे फिर फ्रीलांसर बनके। ये सब बोर्ड का भी आपस में थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एंड आई थिंक बोर्ड कोऑर्डिनेशन इज अ गुड सेगवे इनटू एशिया कप 2023 जो अभी शुरू ही हुआ है मामला, राइट? आई थिंक कि बीसीसीआई हैज सेड कि इंडिया टीम नहीं जाएगी पाकिस्तान, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम देयर इज अ बोर्ड व्हिच इज ट्राइंग टू टेक अ स्टैंड अगेंस्ट बीसीसीआई, राइट? PCB. तो वो लोग, I mean, but whatever they are saying looks a little stupid to me at this point of time, but at least they are saying something, right? Statement release कर रहे हैं कि हमसे बिना पूछे स्टेटमेंट दे दिया गया और ये हो गया वो हो गया। But मैं अपना पॉइंट पहले रख देता हूँ इस पूरे टॉपिक पे, then we will see what you guys think. PCB moved Asia Cup out of India in 2018, right? So they are the one who created this precedence, saying कि हम इंडिया के साथ नहीं खेलना चाहेंगे, इंडिया में जाके नहीं खेलना चाहेंगे, तो एशिया कप यहाँ से मूव हो जाएगा। एंड एशिया कप वाज मूव टू अ न्यूट्रल वेन्यू, आई थिंक श्रीलंका में हुआ था उस साल। तो अगर ये प्रेसिडेंस उनका ही खड़ा किया हुआ है, then on what basis can they say कि इंडिया कैन नॉट डू दिस? Is the first point, right? And BCCI being BCCI, they don't give a two hoot about PCB at this point of time, and never will, never have, never will, is what I see. लेकिन अगेन एशिया कप मोस्ट प्रोबेबली अगर हो जाए तो अच्छा ही रहेगा। इंडिया पाकिस्तान ऐसे ही बहुत कम खेलते हैं, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस का वैल्यू तो ऑफ कोर्स वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे ज्यादा वैल्यूड मैच है किसी भी फॉर्मेट का, किसी भी वेन्यू पे, किसी भी टाइम लाइन में हो, टाइम जोन में हो, तो इट विल ड्रॉ द लार्जेस्ट व्यूअरशिप देन अ क्रिकेट मैच कैन इवन इमेजिन। तो वो तो है ही, बट क्या लगता है आप लोग को ये एशिया कप 23 को लेके क्या सिनेरियो, क्या क्या उसका रिपल इफेक्ट भी देख सकते हैं आप? शुरुआत में ही खत्म कर दी है डिबेट को कि शुरुआत उन्होंने की है, तो अब वो हम लोग को क्या बता रहे हैं? मतलब हम सही बता रहे हैं एकदम, मतलब इसके आगे क्या बोले? आप आ जाते उस वक्त तो अब है ना, अब आप ही नहीं आए थे, आप ही प्रेसिडेंट सेट कर दिए, और अब आप बोल रहे हो कि तुम नहीं आओगे तो हम ये कर देंगे। मत आओ वर्ल्ड कप में, ऐसा तो होगा नहीं। हाँ, वर्ल्ड कप में नहीं आना कैसे, मतलब वर्ल्ड कप में नहीं आने से किसका नुकसान है?
भाई मतलब हम तो वही बोल रहे हैं कि मेरा एक पैर कट गया, हम दूसरा भी काट देंगे, लो उससे में हम तो मतलब फिर से वही बात है, रैम्बो की बातें हैं, रैम्बो ही जाने। तो ये सब तो होते रहेगा, So, लेकिन पाकिस्तान में मेजर टूर्नामेंट होस्ट होते हुए कितना साल हुआ है ना अभी? ना ना, इधर 3 पिछले साल? एक साल में उन लोगों ने काफी, अभी जैसे 1 साल। इंग्लैंड 7 ऑस्ट्रेलिया, T20 खेल के आया, ऑस्ट्रेलिया ओके। टेस्ट मैचेस खेला, तो न्यूजीलैंड आया, मतलब छोटे कंट्री वेस्ट इंडीज श्रीलंका सब गए, इंडिया हैज नॉट गॉन, बांग्लादेश भी गया है, तो हम लोग बस नहीं गए, मतलब अगर आप वो लोग बेसिकली थोड़ा पहले, सा साउथ, हाँ, मेरे को लगता है पहले पीएसएल को दे मूव्ड इनटू पाकिस्तान, तो हाँ मेरे ख्याल से धीरे धीरे देव पीएसएल का एक बार क्या किया वो लोग कि सिर्फ प्लेऑफ्स कराया पाकिस्तान में, पूरा टूर्नामेंट यूएई में कराया, प्लेऑफ्स कराया, फिर लास्ट वाला पीएसएल पूरा का पूरा पाकिस्तान में कराया, और उस पीएसएल से जस्ट पहले न्यूजीलैंड और इंग्लैंड दोनों लोग बैक ऑफ किया था टूर से, और तो उस पीएसएल के बाद से दीज पीपल लेफ्ट सेट किया हम लोग आएंगे खेलेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया खेला, इंग्लैंड खेला, न्यूजीलैंड इंग्लैंड So, फिर से भी I टेस्ट think खेल लिया। so where I'm going with the question is कि is the concern valid? Indian team नहीं जा रही, I'm guessing because of security reasons. Is that a valid concern, or do you think we are just not going because we don't want to go to But for India, it will play be. cricket? I would say both. Both, when I say one is security and another is political factor. देखिए, बाकी countries को लेकर कुछ भी हो, when it comes to India, there will be heightened issues. There would be different level of security issues. That's point number one. Another thing is, I'll be very frank because I follow their politics. Pakistan right now is going through a lot of upheaval. अब आप ही को मैं बता रहा हूँ, मतलब कल ही इमरान खान हैज बीन बेसिकली डी-रिकॉग्नाइज्ड, ही कैन नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस, कल का उनका जजमेंट है वहां पे। सो अगेन वहां पे अब नेक्स्ट राउंड ऑफ इन फाइटिंग विल हैपन, मतलब जहां इमरान खान व्हिच इज हु इज परहैप्स द मोस्ट पॉपुलर लीडर देयर एंड द अपोजिशन एंड ऑल दैट विल कम इनटू पिक्चर। अब देखिए इसका एक एस्पेक्ट समझिए, 7 अभी T20 हुआ इंडिया इंग्लैंड और पाकिस्तान, सिर्फ लाहौर और कराची। आप एशिया कप कराओगे, ठीक है, आपके पास फिर से वही रहेगा कि एक तो इनके स्टेडियम्स मेंटेन्ड नहीं रहे, इनके पास उतना फंड नहीं रहा, पहले फिर भी आपको याद होगा मुल्तान चले गए, पेशावर चले गए, ये सब भी थे, अब ऑलमोस्ट पता नहीं इन सब में क्या चल रहा है, इनका एकदम बंद ही चल रहा है, वो एक एस्पेक्ट है। दूसरी बात ये है कि देखिए यहाँ पे इंडिया एंड पाकिस्तान क्रिकेट इज ऑलवेज गोइंग टू बी गाइडेड बाय द पॉलिटिकल फैक्टर्स, ओनली मिस्टर नरेंद्र मोदी विल डिसाइड and Mr. Amit Shah, of course, will decide whether we are going or not going. बाकी इसमें players cannot do anything, the administrators cannot do anything. That's what Rojo Beni yesterday said, Anurag Thakur said, Jai Shah has said will not go. Apart from that, everybody is saying the government will decide. Saurav Ganguly was also saying the same thing. तो इसमें आप Pakistanis may be angry, may be sad, but the reality is this will be decided by the government, and whatever government decides will have to go according to that. And I would like that government gives us the green signal, because पाकिस्तान को अभी से अच्छा, ज्यादा अच्छा से हराने का मौका कभी नहीं मिलता। अपना टेस्ट मैच का जो रिकॉर्ड थोड़ा खराब है ना, 8 विन और 11 लॉस, सही हो ठीक कर जाएगा, लेना था इसी वक्त, यही मौका था ठीक करने का। अश्विन और जडेजा और इन सबको भी टेस्ट मैच के लिए भेज दीजिए, 2-4 खिलाइए, खत्म करिए, एक बार सही हो जाए, 11-11 12-11 करिए और फिर छोड़ दीजिए। जा ऐसे नहीं। नहीं, मजा तो आता ही है भाई, कल के लिए सब लोग तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए मजा तो आता ही है। देखिए हमारा पाकिस्तान के साथ कहीं कोई इश्यू थोड़ी है, हम लोग तो हमेशा बोल रहे हैं कि कंटिन्यूसली उनको ये बोलते हैं कि भाई टेररिज्म वाला अपना एंगल बंद करिए, खत्म करिए, और फिर नॉर्मल रहिए ना, नॉर्मल रहिए, हमको क्या है भाई, हम सबके साथ खेल रहे हैं, आप पूरे वर्ल्ड में हम लोगों का कहीं किसी के साथ इशू नहीं है कुछ भी। आप बेमतलब हमारी कंट्री, हमारे गवर्नमेंट का क्या पॉइंट है कि भाई जो आप दहशतगर्दी करते हैं कश्मीर में बंद कीजिए, और क्या ठीक है, आपको हमको क्या है, हम खेलेंगे आपके साथ, और खेलिए, हर दिन खेलेंगे, क्लियर कट है, नॉन क्रिकेटिंग इश्यूज की वजह से क्रिकेट को इंपैक्ट हो रहा है, एंड व्हिच इज अ फेयर कॉल ऑन गवर्नमेंट्स पार्ट, आई थिंक उसमें कुछ because see, intellectuals bring this argument that don't mix sports and politics. The problem is politics is everywhere, politics is there whether you like it or not, and the thing is sentiments, we have to also look into the sentiments of the people. If the sentiments of the people is not good or is not pro cricket, I don't think one should support this. And again, see,
देखिए हाइट ऑफ कारगिल था, हम लोग वर्ल्ड कप इंग्लैंड में खेले थे 99 में। अटल बिहारी वाजपेयी जानते थे कि कारगिल में क्या हुआ, उसके बावजूद 2003-4 का हम लोग मतलब उसके बाद यूपीए अटल बिहारी वाजपेयी सब टूर हुआ, 2005 में आए, 2008 में आए, 2012 में वो लोग आके 3 T20 हम लोग के साथ खेल के गए, फिर एशिया कप के लिए भी आए पाकिस्तान। तो हम लोग तो चाहेंगे कि नॉर्मल रहे, जितना ज्यादा नॉर्मल रहे, क्योंकि उससे बीसीसीआई को भी फायदा होता है भाई, पैसा हाँ, तो हमको भी पाकिस्तानी मिलता है क्रिकेट और वो लोग तो सरवाइव करते हैं बिकॉज सर्वाइव ही नहीं करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट इज अ क्रिकेटर्स आर अ बिग ड्रॉ, राइट? अब बाबर आजम अगर Absolutely. खेलेगा तो लोग देखेगा ना यार, अगर रिजवान और- खेलेगा तो लोग देखेगा ना। कौन नहीं देखना चाहेगा? अच्छा हाँ, क्रिकेटर भाई, अभी अच्छा। अप्रिशिएट देयर क्रिकेटिंग स्किल्स। हमको क्रिकेट को लेके कहीं कोई इश्यू नहीं है, हमारा पॉइंट ये है कि भाई वो एक जो होता है ना कि द प्रॉब्लम व्हिच इज देयर उसको हटाइए एंड देन एवरीथिंग इज गुड। एंड आई थिंक ऐतराज नहीं होगा वहां भी जो होता है उसमें भी पाकिस्तान बोर्ड और प्लेयर्स का तो कोई कंट्रोल है नहीं, वहां पर भी जो अरे भाई गलत सही हो रहा है। उनका प्राइम मिनिस्टर कहता है कि प्राइम मिनिस्टर हम थे बट गवर्नमेंट कोई और चला रही थी, तो भाई रैम्बो क्या बोलेगा? नाम रैम्बो रख लेने से रैम्बो थोड़ी हो जाते हैं। दैट्स द थिंग। बट सही है, ठीक है। तो एशिया कप आप लोग ये देख रहे हैं। आई डोंट थिंक बीसीसीआई विल गो एंड आई थिंक वर्ल्ड कप में पाकिस्तान आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो किसका नुकसान है, वही है। बट या ग्रेट। सो आई थिंक some of the boards listen to this discussion और क्लब वर्सेस कंट्री का डिबेट थोड़ा सा बेटर हो जाए, सेटल हो जाए मामला। देखो और एशिया कप और वर्ल्ड कप तो ऑफ कोर्स वी हैव टाइम, वी विल सी हाउ इट अनफोल्ड्स। हम लोग क्लोजली फॉलो कर ही रहे हैं व्हिच इज राइट। सो एनी क्लोजिंग कमेंट? राहुल पराशर बहुत देर से आप चुप हैं, बताइए। नहीं, आई एम जस्ट लिसनिंग अलोंग। एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान मैच इज ऑलवेज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। अगर हमारी टीम नहीं जाती है बिकॉज ऑफ whatever the concerns, तो यार एज अ फैन तो डिसअपॉइंटेड होंगे ना। Hey, we'll lose out on अब जो रियलिटी some good नहीं, नहीं, competition. लेकिन अब ठीक है, अब जो है सो है। जस्ट सॉरी टू इंटरप्ट, हम नहीं जाएंगे तो एशिया कप कैंसिल होगा, हम जाएंगे तो एशिया कप कहीं और हो अरे जाएगा, वही होगा। अभी आपको लिख के दे रहे हैं, मतलब अभी हम लोग उस रुतबे में हैं। ये तो बीसीसीआई का साख बोल रहा है। अरे बिना दुल्हा या दुल्हन के शादी थोड़ी होती है, हम लोग दोनों ही हैं यहाँ पर, हमारे बिना कुछ नहीं होगा वहाँ। ये भी ठीक है। नहीं, no further comments. I think Rohit bhai has covered everything that I needed to say. Actually, Rohit bhai has covered everything that I needed to say. वाला part maybe is नहीं, ये मतलब ये डिबेट देखिए, मेरे हिसाब से अब डिबेट रहा ही नहीं। मोदी जी और अमित शाह जो चाहेंगे और सही चाहेंगे वही होगा, as simple as that. On that note, we will wrap this episode up. और हम लोग लाते रहेंगे और एपिसोड्स आप लोग देखते रहिए, सुनते रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर वाचिंग, wherever you are watching and listening this. बाकी शेयर सब्सक्राइब करते रहिए अपना क्रिक बिट्स एंड पीसेस चैनल को। थैंक यू। Thank you. Crick Bits and Pieces, an unexpert panel.